بتاریخ 15 نومبر بروز جمعہ ایک کانفرنس رکھی گئی جس کے اندر حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، مفتی اول مہٹواڑہ، ان کی صدارت میں اور ان کی ایما پر ایک کانفرنس رکھی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے مفتی صاحب نہ پہنچتے ہوئے انہوں نے اپنا پیغام اس طرح سے یہاں پر بھیجا جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ناندیڑ شہر کے 200 سے زائد تمام مکاتب فکر کے اکابرین، علماء کرام، مفتیان اعظام، وائمہ مساجد و دیگر ملی مذہبی تنظیموں اور دونوں جمعیت کے ذمہ داران نے دکشن کے امیدوار فاروق احمد صاحب کی تائید و حمایت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان 13 نومبر 2024 کو صبح 11 سے 2 بجے تک جو MGR گارڈن میں پروگرام رکھا گیا تھا، مشورے کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا، اور تمام لوگ اس بات پر متفکر تھے کہ کس کا اعلان کیا جائے۔ تمام علماء کرام اپنی اپنی رائے دی اور مختلف رائے آئی۔ آنے کے بعد اس بات پر سب متفق ہوئے کہ 13 تاریخ کو 6 بجے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، جو تقریباً 1 سال سے یا 6 مہینے سے زائد وہ ناندیڑ کا نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کا بلکہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، اور وہ سرچ کر رہے تھے کہ کہاں پر کس کو بہمت ہے اور کس کی تائید میں لوگ ہیں، اس کا ڈاٹا ان کے پاس تھا۔ مختلف تنظیموں سے انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد میں ایک فہرست جاری کرنے والے تھے 6 بجے تک 13 تاریخ کو۔ تمام علماء کرام نے باتفاق رائے حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب کو اپنا صدر منتخب کیا، اور ان کی صدارت میں سب بایک آواز یہ کہا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جس شخصیت کا بھی، جس امیدوار کا بھی نام لیں گے اور اس کا ودھان سبھا کے تعلق سے جس کا بھی نام آئیں گا، اس یادی میں جس کا بھی نام رہے گا، اس نام پر ہم مہر لگائیں گے، اس پر متفق ہوں گے۔ اور دعا ہوئی اور تمام لوگ چلے گئے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 4 بجے کے بعد فوراً ہی بامبے میں حضرت نے ایک کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کے اندر مختلف تنظیموں کے مختلف نام کا اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ اس میں دکشن سے یعنی ناندیڑ دکشن سے فاروق احمد صاحب کا بھی اعلان ہوا۔ ہم تمام علماء کرام اس وقت تقریباً 150 سے 200 علماء کرام موجود تھے، جس کے اندر حضرت مولانا عثمان صاحب جامعۃ العلماء محمود مدنی کے صدر، حضرت مولانا حافظ عبدالحفیظ صاحب ارشد مدنی کے صدر، اور اسی طریقے سے مختلف تنظیموں کے سربراہان موجود تھے، ہمارے رفقا موجود تھے، اور تمام مل کر اس میں خاص کر حضرت مولانا ایوب صاحب، اور اس سے پہلے مولانا صاحب عبداللہ صاحب سے بھی میٹنگ کی گئی، اس سے پہلے رات میں 1 دن پہلے مفتی شاکر خالد صاحب ان سے بھی رائے لی گئی۔ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جس کے بھی نام کا خلاصہ کریں گے اس پر ہم متفق ہیں۔ تو میں تمام دکشن کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گیس سلنڈر جو ان کا جو ہے نشانی ہے، چہن ان کے، اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرائے اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرے۔ ایسی میں حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب کے حکم پر اعلان کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرائے، اور کوئی شخص گھر پہ نہ رہے، جو باہر ہے تو اس کو بلائے، اپنے پیسے سے خرچ کر کے جو ہے 100% ووٹنگ کرانے کی کوشش کرے۔ اور یہ اعلان کسی کے خلاف میں نہیں ہے، صرف امت کو بچانا ہے غلط اعلانات سے، اور ایک رہبر کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا ہے تاکہ انتشار نہ ہو۔ اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا
उस पर तकरीबन मराठवाड़े से मुस्बत पैगामात आ रहे हैं, मुस्बत उसकी सोच आ रही है और एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर फरमाए। उन्होंने आपने कुछ बोले थे, क्या बोला था? डायरेक्ट बोलो। अपने जो सुन्नी इल्मों ने जो तायद करे वो आप बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तमाम लोग ये जानते हैं कि आज से 2 दिन कबल जो है हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक़ से जो बयान आया है उस पर जो है न जाने कैसे कैसे जो है आवाम की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है मैं इस पर बात करूंगा। वो लोग जो है ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि उलमाए किराम जो है ये हमारे सर के ताज है, ये वरसतुल अंबिया है, ये नबियों के वारिस है ये। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि आज से कुछ महीने कबल पहले जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जिसमें मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी की तरफ से ये बार बार जो है नारा लगाया जा रहा था, अब की बार 400 पार। आपने सबने देखा कि अब की बार 400 पार जो मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा था, उस नारे को रोकने में अगर सबसे अहम अगर किसी ने किरदार निभाया है तो वह उलमाए किराम का था। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको 300 के अंदर ही जो है समेटने में जिसका सबसे अहम किरदार रहा वो उलमाए किराम रहे हैं। तो आज जो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से नाजेबा जो कलमात या दिगर, अब जो है शहर की बात ले लो अपने नांदेड़ के अंदर, जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर से अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के ताल्लुक से जो है मतलब सपोर्ट का, तायद का ऐलान किया, हम उसका इस्तकबाल किया। दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब जो कि वंचित के जो है मतलब है, आपने उनका ऐलान किया। तो अब जो है ये तमाम लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि भाई जिस तरीके से आपने उत्तर में, आपने जो है जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर में जो है अब्दुल सत्तार साहब के तायद का ऐलान किया, सबने लब्बैक कहा, लेकिन जैसे ही दक्षिण में फारूक अहमद साहब का नाम आया तो जो है पूरे शहर में जो है एक अलग ही एक माहौल जो है मतलब ख़राब हो गया। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो अवाम में है, बिलखुसूस आप लोग जो है ये हक नहीं रखते कि उलमाए किराम अगर जो है कोई अगर बात कह रहे हैं तो ये कोई जज्बाती फैसला या कोई जज्बाती बयान नहीं होता। हम और आप हैं कि जो जज्बात में आके कभी नारे लगा देते हैं या कभी जज्बात में आके किसी की भी हक में कोई भी बात कह देते। मौलाना सज्जाद नोमानी जैसी शख्सियत जिसकी निगाह सिर्फ हमारे गलियों या हमारे दक्षिण के हद तक महदूद नहीं है, मौलाना सज्जाद नोमानी ये ऐसी शख्सियत है कि जिसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान पर है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले रहे हैं और कहां पर किसके लिए क्या बेहतर है उसकी आप तजवीज़ फरमा रहे हैं। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि जो भी मतलब अहले खैर हजरात है और जो भी दानिश्वर है और जो भी समझ बूझ रखते हैं तो वो जिस तरीके से और दिगर जगहों पर, जैसा कि उत्तर की बात करूंगा, उत्तर में जिस तरीके से अब्दुल सत्तार साहब के नाम की तायद का आपने इस्तेकबाल किया, ऐसे ही जो है दक्षिण में भी फारूक अहमद साहब के नाम की तायद का जो है इस्तेकबाल करना चाहिए था। मगर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कल जो है उसी ज़िमन में व्हाइट हाउस के अंदर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के जो है बयान के मुखालिफ में जो है उलमाए किराम को, चंद उलमाए किराम को जमा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके जरिए ये बताया गया कि नांदेड़ के तमाम उलमा, नांदेड़ शहर के दक्षिण के तमाम उलमा, उसमें कुछ फिगर भी बताया गया 200 या कुछ तो भी। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बयान आने से पहले नांदेड़ के एमजीआर गार्डन में उलमाए किराम जो कि नांदेड़ के, उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग के अंदर जबकि जो एक साहब का जो है सोफे पे बैठकर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो खुद उस मीटिंग के अंदर थे। 150 से जायद उलमाए किराम जो है एमजीआर गार्डन 13 तारीख को 11 बजे जो है वहां पर मौजूद थे, जिसमें मैं खुद था, हजरत थे। और उस प्रोग्राम और उस मीटिंग की क़यादत जो है मुफ्ती मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब जो है फरमा रहे थे। तो उस मीटिंग के अंदर
उस मीटिंग में तमाम की तमाम उलमाए किराम के मुत्तफिका तौर पर यह बात तय हुई थी कि उस वक्त जो है वहां पर जैसे नांदेड़ का जो माहौल अभी है कि भाई इधर से दक्षिण से जो है दो उम्मीदवार है, हजरत अली जनाब जो है एमआईएम से भी है और वंचित से भी है, दोनों भी मुस्लिम है, तो किसको वोट करना चाहिए, किसके ताल्लुक से वोटिंग करना चाहिए, तो इस पर जो है उलमाए किराम अपना किरदार अदा करे। तो इस मुआफिकत से जो है वो मीटिंग रखी गई थी मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की सदारत में। तो वहां पर ये मुत्तफिका तौर पर यह तय हुआ था कि यहां पर हम लोग जो है किसी का भी नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। मीटिंग के अंदर जो है जितने भी उलमाए किराम आए थे वो सब ने यह तय किया कि यहां पर हम किसी का भी नाम तय नहीं करेंगे। 2 बजे से लेकर 6 बजे 5 बजे तक जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जिसके नाम की तायद करेंगे बस उसी पर सबका मुत्तफिक रहेगा और सबका इत्तेफा रहेगा। यह बात वहां से तय हुई थी और यह बात तय होने के बाद ही वो जो है मीटिंग वहां से बर्खास्त हो गई थी। मगर न जाने क्यों हजरत का जो है मतलब जो है जवाब आया उधर से तायद आई फारूक अहमद साहब के ताल्लुक से, तो वहां पर जो है जितने लोग थे उसमें से कुछ लोग जो है बिखर मुखर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो है जिस तरीके से उन्होंने ये जो है अब ये जो मामला है दक्षिण के ताल्लुक से, तो ये ऐसे ही मतलब जज्बात में उन्होंने फैसला नहीं किया। उनके पास यहाँ से कुछ रिपोर्टें गई हैं, उनके पास यहाँ से कुछ जो है मामला गए हैं लोगों के, तब जाकर के उन्होंने जो है इस पर फैसला किया है। तो मैं तमाम के तमाम अहलियाने नांदेड़ शहर और बिलखुसूस दक्षिण के लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब की तायद का ऐलान किया है, तो तमाम की तमाम उलमाए किराम वो चाहे किसी भी मकतबे फिक्र के हो, चाहे वो देवबंदी हो कि अहले सुन्नत बरेलवी हो या दिगर जितने भी मकातिब फिक्र के हैं, अक्सरियत जो है उलमाए किराम की फारूक अहमद साहब की तायद में है और वो जो है फारूक अहमद साहब की तरफ ही जो है वोट इंशाअल्लाह सबका रहेगा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।